Good evening, all. Uh, Thank you, HR sir. Thank you. So last time we started components of balance sheet from the book Know Your Balance Sheet, authored by C.A. Hanumantrao Chaudhary. Uh, and we saw secured loans last time and what is accepted as collateral. So today we will start from following are some of the most expensive loans. Credit card, personal loan, business loan, education loan, car loan, term loan, and home loan. They are some of the most expensive and costly loans. So an important thing to note here, some important things actually. If any loan is taken for purchase of machinery, then the interest cost up to the production period must be added to the respective machinery account and must not be debited to the profit and loss account, because such expense is capital in nature. Example, if X machine is purchased, then the interest cost is added to X machine account till the production period and not to the profit and loss account. Next is, if loan is taken for factory shed, then the interest up to commencement of commercial production is added to the factory shed account. It is advisable to take loan only for business expansion purpose. However, I do advise to take loan for purchasing factory shed only when the business is stable and is growing. Plan your loan in such a way that the loan amount is not more than 75% of the cost of factory shed. It means 25% of the amount is taken from the business profit. It is not advisable to take unsecured loan for this amount, for this purpose. For entrepreneurs and startups at the initial stage of business, it is not easy to get the machinery loan. The main reason is that they don't have 3 years of business existence. And secondly, they don't have collateral security to offer to the bank. Most of the banks do not provide loan to the SMEs under CGTMS scheme loan. Banks demand additional collateral security for safeguarding the interest of the bank. Even if the business is in existence for the past 3 or more years. In such a case, the management should meet the branch manager and make a presentation of the project cost, the orders in hand, and their value, etc. Once the business owner shows the confidence of repayment of the loan, bank is more inclined to give the loan. So let's have a look at other components of the loan. Credit card. Credit card is one of the most expensive loan as compared to other loans. With credit card, we tend to spend more even if there is not enough money. Pay all the credit card dues in time because the interest charged is pretty steep compared to any other loan interest. As a chartered accountant, I always suggest to use debit card and use credit card wisely and sparingly. Personal loan. Personal loan is an unsecured loan that is taken for personal use, like marriage of daughter, etc. This loan carries a high rate of interest as compared to other loans. Hence, we advise to plan personal expenses properly and not to opt for such loans. Business loan. Business loan is also unsecured loan that is given on the basis of last 3 years financial statement, income tax return, your credit worthiness, and CIBIL score. As a chartered accountant, I advise to opt for cash credit, overdraft, and term loan instead of business loan. Education loan. Education loan is the loan given for higher education purpose. This is also quite an expensive loan if you do not pay in time. Strive to pay back once your education is completed. You can claim income tax deduction for repayment of interest.
Car loan. Car loan is another expensive loan that needs to be utilized in a more efficient way. Buy a car according to your need and never compare with your friends and relatives. We advise to take only 50% car loan. This implies that 50% should be your own money. Further, second-hand car loan is expensive and should be avoided. Use the car at least for 5 years to recover the cost. Don't change the car frequently for newer and higher end models. This is because if you are selling the old car at a low price and buying a new car at a higher cost, then you are paying more unnecessarily. Term loan. Term loan is taken for purchase of plant and machinery and factory shed with fixed EMI and a tenure of 5 to 7 years. The bank may give you moratorium period of 3 to 6 months. Moratorium period means bank will collect only interest during this period. Home loan. House is one of the basic needs of a human being. However, the real estate prices have grown in leaps and bounds. Though the real estate market is currently at a low level, still it is not easy buying a house, even with good income. Buy the house after giving due attention to details like location, where you want to buy, and the size of the apartment, etc. Ensure that your own contribution is more than 40% of the price of the house. For example, suppose the cost of the house is 75 lakhs. Your own contribution should be 30 lakhs. For a loan of 45 lakhs, the EMI will be around 45,000 per month. If your income is more than 1 lakh per month, then the EMI is not more than 50% of your total income. Plus, you get the income tax benefit of interest and principal paid for housing loan. So should I continue? HR sir? Thank you, madam. I will read it, then we'll go further. Okay. Good evening and welcome all. Today, Kote sir is not there due to his network issue in Bosri area. So today we are continuing reading our book Know Your Balance Sheet. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग लोन लेने के लिए जाते हैं, बट कैसे हम लोग लोन लेना चाहिए इसके बारे में कभी हम लोग एनालिसिस नहीं किया हुआ रहता। ये सारी चीजें जो लोन है, ये सबसे कॉस्टलीस्ट लोन कौन सा ज्यादा कॉस्टली लोन है उसके हिसाब से हम लोग हायरार्की में दिया हुआ है इधर। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा कॉस्टली लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन, उसके बाद में एजुकेशन लोन, उसके बाद में कार लोन, उसके बाद में टर्म लोन, उसके बाद में होम लोन। ये जो लोन से एक से एक कॉस्टली होता है और अपने को अवेयर नहीं होता है, तो उसके लिए इसमें ज्यादा ध्यान देना है आपको, कौन सा लोन कैसे अपने को लेना है, लिया तो भी उसको कैसे यूज करना है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग लास्ट टाइम में भी डिस्कशंस किया, ये क्यों रिपीटेड कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जिधर मिस्टेक्स अकाउंटिंग में होता है वो हम लोग उधर ज्यादा फोकस दिया हुआ है। सपोज अपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपने लोन लिया, उसका जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस होता है, उसका जो भी इंटरेस्ट होता है अप टू प्रोडक्शन, जब तक उनका कंपनी का जो मशीनरी का जो प्रोडक्शन चालू होने तक जो भी खर्चा आएगा उसका, वो सब वो मशीनरी में ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक्स मशीनरी आपने परचेज किया, उसका जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो सब आपको एक्स मशीनरी में ऐड करना है अंटिल आपका जो मशीनरी इंस्टॉल करके जैसे प्रोडक्शन चालू करेंगे, तब तक आपका जो भी एक्सपेंसेस होता है अब यू शुड नॉट डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वो एक्सपेंसेस नहीं डेबिट होना चाहिए, वो ऐड होना चाहिए फिक्स एसेट्स में। दूसरा जो है फैक्ट्री शेड, अभी बहुत सारे फैक्ट्री शेड का एक्सपांशन का काम चालू होता है। अभी सपोज बोसरी में आपका कंपनी और आपने चाकन में भी एक्सपांशन करना है, उसके लिए आपने लोन लिया हुआ रहते हैं, और उसका जो भी इंटरेस्ट है जब तक वो फैक्ट्री आपका शेड कंस्ट्रक्ट होके जब वो कमर्शियल एक्टिविटी चालू हो जाता है तब तक उसका जो भी इंटरेस्ट इनकम है और इंटरेस्ट जो भी एक्सपेंसेस है, उसका रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो भी एक्सपेंसेस है,
वो आप सब उसको फैक्ट्री शेड में ऐड करना है। तभी हम लोग जाएंगे कि जो फैक्ट्री शेड है, फैक्ट्री शेड आपको कब लेना है। बहुत सारे लोग कंपैरिजन होते हैं। अगेन जैसे अपने फ्रेंड ने फैक्ट्री शेड लिया, उन्होंने खुद का बिजनेस चालू, खुद का ओन कंपनी चालू कर दिया, उनका ओन जगह लेके उन्होंने बिजनेस चालू किया। ऐसे बहुत सारे लोगों का एक ये होता है, कंपैरिजन हो जाते हैं। ये मेरा सजेशन ऐसे है, जैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे रेंट की, इसमें एक एटलीस्ट 4-5 ईयर्स तक आप खुद का फैक्ट्री नहीं सोचना चाहिए। जैसे आपका एक बिजनेस स्टेबल हो गया, आपको मार्केट, उसका जो भी सराउंडिंग है, वो एरिया कैसा है, उधर कैसे आपको रिसोर्सेस मिलेगा, जैसे उधर स्टाफ कैसे मिलेगा, बाकी रॉ मटेरियल आपको कैसे नजदीक है, आपको डिलीवरी करने के लिए आपका कस्टमर कैसे नजदीक है, ये सब चीज आप एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गया, उसके बाद में 4-5 साल में आप फैक्ट्री शेड लेने का डिसीजन आप ले सकते हैं। आप फैक्ट्री शेड लेते टाइम में आपका कितना अमाउंट खुद का होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग बहुत फास्ट डिसीजन लेता है। जैसे मेरा फ्रेंड ने अभी 4000 स्क्वायर फीट का एक फैक्ट्री शेड लिया, मेरे को भी लेना है, तो उनका साथ में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, ऐसे भी बैंक आपको 75% लोन देंगे, आप बाकी का जो 25% ओन कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए वो भी आप बाहर से अनसेक्योर्ड लोन लेके आप उसको पेमेंट करेंगे बैंक को। यू आर शोइंग लाइक ए मार्जिन मनी यू आर पेड, बट इनडायरेक्टली जो लोन है वो 75% सेक्योर्ड लोन होगा, 25% आप अनसेक्योर्ड लोन किधर से लेके आया हुआ रहता है, आपका खुद का पैसा नहीं होता है उसमें से। उसके लिए आपका 100% लोन आप फैक्ट्री शेड के लिए लिया हुआ रहते हैं। उसके लिए आपको रीपेमेंट करते टाइम में बहुत दिक्कत हो जाते हैं। उसके लिए आपको ये गलती नहीं करना है। जब भी आपको फैक्ट्री शेड लेना है, आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, मेरा अभी बिजनेस कैसे सेट हुआ, कैसे हम लोग अभी अपना फैक्ट्री, एक स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। एक ही बार आपने बिजनेस स्टार्ट करते हुए खुद का फैक्ट्री लेके चालू करना, ऐसे कुछ नहीं है। आपको पहले सोचना है, 2-3 साल के बाद आपका बिजनेस सेट हुआ तो आप आगे आप फैक्ट्री शेड का बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकते हैं। जैसे अभी भोसरे में हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, न्यू बिजनेसमैन है, उनको खुद का कंपनी डालना उनका बहुत इच्छा होता है। बट उनका प्रॉब्लम्स क्या होता है, उनको स्टार्टअप, उनको लोन्स नहीं मिलता है, क्योंकि इधर उनका खुद का कुछ घर नहीं होता है, तो बाकी उनका 3 साल का ITR भी नहीं रहते उनको। बट ये बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, एक क्रेडिट गारंटी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, वो आप बैंक से ले सकते हैं। अप टू 2 करोड़ आपको विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक देगा। बट सबके लिए नहीं देगा, क्योंकि ये जो अनसेक्योर्ड लोन है, ये जो CGTMS स्कीम का जो लोन है, उसमें बहुत सारे अभी बैंक का बहुत NPA बढ़ा हुआ है, क्योंकि उधर सिक्योरिटी नहीं रहता है। उसके लिए बैंक उसमें बहुत ज्यादा तरफ से डीप में एनालिसिस करेंगे आपको लोन देने से पहले। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको खुद को प्रॉपर प्रेजेंट करना है। आपको जैसे आप बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद मार्केट का स्टडी करना है, आपका कितना परचेज ऑर्डर है आपके हाथ में, आप बिजनेस कैसे डेवलपमेंट करके आप बैंक को रीपेमेंट कैसे आप कर सकते हैं। अपने एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के प्रॉपर उनको बैंक मैनेजर को अपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया तो आपको CGTMS लोन मिलने का चांसेस बहुत होता है। एवरी ईयर अपने पास बहुत सारी कंपनी को हम लोग CGTMS स्कीम में भी लोन हम करके देते हैं, तो उनको स्टार्टअप करने के लिए ईजी हो जाता है। बट उससे पहले आपका बैंक कॉन्फिडेंस चेक करेगा, आप कितना कैपेबल है आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आप रीपेमेंट करने के लिए। क्योंकि बैंक आजकल बहुत सोच समझ के लोन देता है, क्योंकि NPA का जो रेशियोज है वो बहुत बड़ा हुआ है। CGTMS में 1% इंश्योरेंस कंपनी पे करते, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो भी बैंक बहुत सोच समझ के CGTMS का लोन देता है। बट आपको ये पता होना चाहिए, ये सेशन का मतलब ही ऐसे है, आप सपोज बिजनेस स्टार्ट कर रहे तो आप ऐसे मत सोचिए मेरे पास कुछ घर नहीं है, मेरे पास 3 साल का ITR नहीं है, मैं कैसे मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है। क्योंकि आप कर सकते, आप CGTMS में आपको 2 करोड़ तक बैंक लोन दे सकते हैं। इसके लिए किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो आप अपने को सेशन होने के बाद कॉन्टेक्ट कर सकते, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, सो विल हेल्प यू। ऐसे बहुत सारे लोगों का बिजनेसमैन होना मोटिव होता है, बट ड्यू टू सम लोन का उनका लोन मिलता नहीं है, बाकी उनका कुछ दिक्कत होता है, उसके लिए वो लोग पीछे हटता है। So this session main motive, this book main motive is to create more and more entrepreneurs and more and more taxpayers to the government also. This is the main motive of this session. So आप बिजनेस करना है कभी भी आप अपने को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी एक एक हम लोग लोन, सबसे ज्यादा कॉस्टली लोन जो होता है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहते, मैं तो लाइफ में कभी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया हुआ है, मैंने ऑलवेज यूजिंग द डेबिट कार्ड। मैं भी सबको सजेस्ट करूंगा यू गो फॉर ऑलवेज डेबिट कार्ड, बिकॉज आपने क्रेडिट कार्ड एक बार आपने ले लिया तो आपका
स्पेंडिंग कैपेसिटी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास कार्ड होता है 2 लाख 3 लाख रुपीस का, वो जो लिमिट फिक्स हुआ रहता है, तो आप कभी भी उसको खर्चा कर सकते हैं। जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है, जितना बैंक में पैसे है आपका थॉट प्रोसेस उतना ही सोचेंगे। जैसे आपके पास कैश है 10,000, अब 10,000 का 8,000 आप खर्चा करेंगे, नहीं तो 5,000 खर्चे करेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड में आपका ऑलरेडी लिमिट दिया हुआ रहते, तो आपका जो परचेजिंग जो थॉट्स है उधर जाने के बाद आपका बढ़ जाते, तो इनडायरेक्टली एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन टेंडेंसी है। आप एक बार क्रेडिट कार्ड लेके गया तो ऑफ कोर्स यू आर बाइंग मोर एज कंपेयर टू अदर इन डेबिट कार्ड। जैसे आपको कुछ स्कीम मिलेगा 50% डिस्काउंट, ये जो रहता है, ऐसे क्रेडिट कार्ड भी वन ऑफ दी यू आर क्रिएटिंग द मोर परचेजिंग आप करना चाहिए, ऐसे आपको एक इच्छा क्रिएट हो जाता है उसमें। उसके लिए क्रेडिट कार्ड आप ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। यूज करना है तो भी आपको वाइजली यूज करना है। अभी मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स है, वो बोलते हैं सर मैं 4-5 क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, कभी भी मैंने उनको खर्चा, मैंने एक्सपेंसेस, मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया हुआ है। it is very good if you are using credit card wisely, then no problems। आपने क्रेडिट कार्ड में थोड़ा एक ही दिन में आपने सपोज डिले किया तो आपको उधर वेरी हाई इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते टाइम आपको सोचना है क्रेडिट कार्ड करना यूज करने के लिए किसके लिए यूज करना है, यूज किया तो भी उसको इन टाइम पे हम लोग कैसे उसको पेमेंट होना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। सेकेंड जो लोन होता है वो पर्सनल लोन। पर्सनल लोन is the unsecured loan is taken for personal use like marriage, जैसे डॉटर्स का मैरिज है, खुद का मैरिज है, ये बहुत सारे पर्सनल लोन लोग लेता है। तो जैसे पुराना जमाने में जैसे किसी बेटी का शादी करना है तो खेती बेच के शादी करता था, ऐसे अभी आजकल लोग पर्सनल लोन लेके बहुत बड़ा शादी हो जाता है। उसके लिए आपको जो भी, अभी पहले ऑप्शन नहीं था, आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं था, अभी आज का जमाना पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। जैसे आपको बच्ची हुआ तो आप कैसे उसको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके उनका एजुकेशन के लिए, उनका मैरिज के लिए आप कैसे कैसे आप उस इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। आप डायरेक्टली पर्सनल लोन में जाने के लिए हम लोग एडवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इधर भी ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। पर्सनल लोन में ज्यादा से ज्यादा आपका एक्सपेंसेस बढ़ा हुआ रहते हैं, वो जो आपका इनकम और एक्सपेंसेस दोनों मैच नहीं होता है, उसके लिए पर्सनल लोन में लोग जाता है। दिस इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, यू डोंट गो फॉर द पर्सनल लोन। बिजनेस लोन ऑल्सो अनसेक्योर्ड लोन्स, ये आपको 3 इयर्स का बैलेंस शीट देके आपको बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन देंगे। बिजनेस लोन का भी जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत हाई रहता है, आपको बहुत एसेंशियल है तो ही आप ये बिजनेस लोन ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। आपको जब बिजनेस लोन लेना है तो आप बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 18% होता है। उससे बेस्ट आप क्या करें, आप क्या करना चाहिए, आप कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, ऐसे लोन पे आप जाने से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन जैसे आप स्टडी करें, सपोज आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट होने तक आपने एजुकेशन लोन जो भी लेंगे आपने, उधर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, बट आप इन टाइम पे उसको भी पे होना चाहिए, पे करना चाहिए। बहुत सारे लोग एक बार एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन होके जॉब करने के लिए भी स्टार्ट करते तो उसका रीपेमेंट होता नहीं है। इससे क्या होगा, आप जैसे इन फ्यूचर में कुछ आप घर लेने के लिए गया तो आपका सिविल रिपोर्ट में ये लोन डिफॉल्ट दिखेगा, उस टाइम पे आपको लोन मिलना दिक्कत हो जाएगा, सिविल रिपोर्ट के लिए भी आपको इफेक्ट होता है। उसके लिए जैसे आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ आप वो लोन भी इन टाइम पे होना चाहिए। उसके लिए टैक्सेशन का भी बेनिफिट है, आप सपोज इंटरेस्ट पे कर रहे लोन का, जब आप जॉब में अर्निंग कर रहे हैं तो उधर भी आपको टैक्स बेनिफिट भी एजुकेशन लोन के ऊपर आपको मिलेगा। दूसरा जो लोन है कॉस्टली, जो कार लोन, कार लोन जो है वो अनदर एक्सपेंसिव लोन है। जैसे कार लेना है तो आपका खुद का नीड पहले आप जज कर दीजिए। जैसे मेरा फ्रेंड ने कार लिया, मेरे को भी वही कार लेना है, ये एक्चुअली गलत है। आप खुद आपको एनालिसिस आप स्टडी कर दीजिए, आपका फैमिली के कितना रिक्वायरमेंट है, आपका बिजनेस के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपको कार लेना है। कार लेना रहे तो अभी आपको हर एक इसमें लोन का परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ये पता नहीं रहते। जैसे आपने कार लोन लेने के लिए गया, घर लेने के लिए गया, तो 80 to 90% सब लोग लोन लेंगे तो आपको रीपेमेंट के लिए 100% इधर दिक्कत हो जाता है। उसके लिए आपको जब कार लोन लेना है तो मिनिमम आपको 50% खुद का अमाउंट होना चाहिए, 50% आप लोन ले सकते हैं। जैसे आपने सेकेंड हैंड कार में गया, सेकेंड हैंड कार के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, वो भी आपको देखना है।
और एक बार कार लिया, आपने लास्ट सेशन में भी ये बोला था, अभी वापस हम बुक्स में रिपीट करेंगे, जिससे आपने कार लिया तो एटलीस्ट 5 इयर्स तो आपको कार को वो कार यूज होना चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे 2 साल में कार नया ये करते, जैसे मॉडल नया आ जाते तो इमीडिएटली वो लोग दे आर सेलिंग देयर ओल्ड कार एंड बाइंग न्यू कार। इससे क्या होगा, आपका जो नया कार है वो तो आपको कॉस्टली, नया न्यू मॉडल है, आपको ज्यादा रेट पे करना पड़ेगा, जिससे आपका पुराना कार है वो आपको कम रेट में बेचना पड़ेगा। इससे आपका लिक्विडिटी से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होता है। बहुत सारे बिजनेसमैन ये होता है, तो इससे एक्चुअली यू आर हैव टू टेक द केयर ऑफ, यू यूज योर ऑल असेट्स वेरी वाइजली। टर्म लोन है, टर्म लोन जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री शेड के लिए टर्म लोन आपको आप ले सकते हैं, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैसे ये तो बिजनेस के लिए आप यूज करेंगे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बैंक आपको एक मॉरेटोरियम पीरियड भी आपको देता है। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है। मॉरेटोरियम पीरियड ये होता है, जैसे आप बिजनेस स्टार्टअप कर दिया तो आपको इमीडिएटली ईएमआई आप पे नहीं कर सकते। ड्यूरिंग दैट पीरियड मींस 3 to 6 मंथ आपको बैंक मॉरेटोरियम पीरियड भी देंगे। उस टाइम पे आप सिर्फ उसको, बैंक को आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, आपको प्रिंसिपल पे नहीं करना है। आप बैंक से रिक्वेस्ट किया मेरे को मॉरेटोरियम पीरियड चाहिए, ऑफ कोर्स आपको बैंक मॉरेटोरियम पीरियड भी दे सकते हैं। दूसरा जो लोन है वो हाउसिंग लोन है। हाउसिंग लोन तो हर एक के लिए जरूरी है। अभी ऑलमोस्ट ऑल सबके लिए हाउसिंग लोन रहेगा ही रहेगा हर एक इसमें से। देयर इज आल्सो वन कोट, इफ यू आर नॉट लाइक योर जॉब यू टेक द होम लोन एंड यू विल गेट द इंटरेस्टेड इन योर जॉब। जैसे आपको ईएमआई नहीं है तो आपको जॉब बोर हो जाएगा, जॉब आपको अच्छा लगना चाहिए तो आप हाउसिंग लोन ले लीजिए, ऑटोमेटिक आपको जॉब लाइक करने को आप स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए हर एक आदमी का हाउसिंग लोन होना ही चाहिए, और है ऑलमोस्ट ऑल इसमें। बट जब आप घर लेने के लिए जाएंगे, आपको क्या एनालिसिस करना है? तो घर लेने के लिए आप गया तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये देखना है वो घर का जो आप लेना चाहते हैं वो एरिया कैसे है, आपका सराउंडिंग कैसे है, वो आपका बिजनेस के लिए नजदीक होता है क्या, आपका जॉब के लिए नजदीक होता है क्या, बच्चों का एजुकेशन के लिए वो एरिया कैसे है, आपको कैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। उसके लिए आपको कौन सा लेना है, क्या 2 BHK लेना है, 3 BHK लेना है, क्या 1 BHK लेना है। बहुत सारे लोग ये भी कंपेरिजन होते हैं, मेरा फ्रेंड ने 3 BHK लिया उसके लिए मेरे को भी 3 BHK लेना है, उन्होंने 2 BHK लिया मेरे को भी 2 BHK लेना है। एक्चुअली ये भी रॉन्ग है, क्योंकि अभी हम लोग अभी बहुत सारे इसमें कोर्ट में पढ़ते हैं, रहने के लिए तो 200 स्क्वायर फीट घर सफिशिएंट है, बाकी जो ऊपर का जो एरिया है वो अपना ईगो है, मीन्स आपको दिखाने के लिए है। उसके लिए आपको जब घर लेने के लिए आप जाएंगे, आजकल घर बहुत कॉस्टली हुआ, उस आपको वो एनालिसिस करना है, आपको कौन सा फर्स्ट आपको 1 BHK लेना है, 2 BHK लेना है, 3 BHK लेना है, आप अकॉर्डिंग टू योर फैमिली साइज आप डिसाइड कर सकते हैं। वो तो एरिया हो गया, और बाकी आपका उसका जो सराउंडिंग है कैसे वो हो गया। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको जब आप हाउसिंग लोन लेने के लिए जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका इनकम कितना है वो भी देखना बहुत जरूरी है। आपका इनकम का जो ईएमआई है, आपने मैक्सिमम आप 60% आप लिया तो अच्छा रहेगा। बैंक तो आपको 80% भी देंगे, 85% भी आपको बैंक लोन मिलेगा, बट आप खुद का 40% तो मिनिमम होना चाहिए। जैसे हम लोग वाकड़ में 2005-06 में जब हम लोग ऑडिट के लिए गया तो उधर 5 लाख 6 लाख रुपए का अग्रीमेंट मिलता था अपने देखने के लिए। मीन्स उधर जो एक छोटा सा एक अकाउंटेंट भी उधर दो घर लिया हुआ है वाकड़ में जब 2005-06 में। बट नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट, इवन हस्बैंड एंड वाइफ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, बट वाकड़ में घर लेना बहुत चैलेंज है। उसके लिए आपको देखना है अभी आपको कौन सा घर रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको चाहिए, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। आपका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन 40% तो खुद का पैसे होना चाहिए। सपोज आपका घर का वैल्यू है 75 लाख रुपीज, तो 30 लाख खुद का पैसे होना चाहिए, 45 लाख तो आपने लोन ले सकते हैं। 45 लाख के लिए आपको 45,000 ईएमआई आता है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गया, अराउंड आपको 36-37,000 आपको ईएमआई आ जाएगा, वो भी आपको देखना है। सपोज आपका इनकम 1 लाख रुपीज है तो मिनिमम 50% तक आप आपका इनकम का ईएमआई आप कर सकते हैं। 50% आपका बेसिक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, बाकी कुछ आपका रेगुलर एक्सपेंसेस होता है, वो भी आपको देखना है। घर लेते टाइम आपको सबसे इंपॉर्टेंट एरिया देखना है, सराउंडिंग देखना है, बच्चों को एजुकेशन देखना है, आपका नजदीक होता है क्या नहीं आपका बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, वो देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका इनकम देखना है, आप कितना हाउसिंग लोन का रीपेमेंट कर सकते हैं। सपोज आपका सैलरी 1 लाख है, आप 50% आप ईएमआई के लिए आप सेपरेट रख सकते हैं, बाकी 50% आप आपका हाउस होल्ड के लिए। तो आप लाइफ जो है आप बैलेंसिंग लाइफ
आप निकल सकते। सपोज आपने लोन 80% 90% लिया, आपका इनकम है 80,000 70,000, EMI जा रहे, तो आपका डे टू डे लाइफ में प्रेशर आ सकता है। ये जो लिखा हुआ है ये टोटली स्टडी करके लिखा हुआ है, उसके लिए आपको ये ध्यान देना है। तो जब आप लोन लेने के लिए गया, हर एक लोन के लिए आप कितना कंट्रीब्यूशन आपका खुद का होना चाहिए, कितना अपने लोन होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अंजलि मैडम, यू कैन रीड प्रोविजंस कंटिन्यूअसली। Yes, thank you, HR sir. So we'll have a look at current liabilities and provisions now. So current liabilities must not be more than current assets. And this table shows the risk factor vis-a-vis the current ratio. So current ratio at low risk should be less than 1.40. Medium risk means it should be between 1.2 and 1.40. And if it is more than 1.20, then it is at a very high risk. So owners and accountants must check the following under current liabilities. Whether all duties and taxes are paid in time. All provision opening balances are paid or nullified in the current year. Whether monthly provisions are made for all the fixed expenses at the end of the month. In case opening balances of creditors are outstanding for more than 2 years, then it is treated as income and is liable to tax at 30%. Also check if the previous year's creditors are written off during the current year, as income tax will be liable on that amount and GST ITC will be reversed. Check if any creditor's account has debit balance. Debit balance means that the amount is paid to the creditors, but bills are not received. Unless it is an advance payment, the bill is required. Else, the business would lose the GST credit as well as expenses claiming under the Income Tax Act. Check if every cash payment to creditors is booked and no entry is left out. Any single cash payment of more than 10,000 made in a day and 2 lakhs in a year to single person is not allowed. So avoid cash payment. Accountant must take ledger confirmation from all creditors, cross-verify and then make the payment. Accountant must always check whether any double entries are made or double payments made against a single bill. Should I continue, sir? No, thank you, madam. I will read it. Okay. The next part of the balance sheet in liability side is current liabilities and provisions. Current liabilities must not be more than current assets. As a businessman, जब आप बैलेंस शीट आप स्टडी करेंगे तो आपको ये देखना है मेरा करंट लायबिलिटीज कितना है, मेरा करंट असेट्स कितना है। कभी भी आपका करंट असेट ज्यादा होना चाहिए तो आपका बैलेंस शीट हेल्दी बैलेंस शीट है। सपोज आपका करंट लायबिलिटी ज्यादा है तो आपका बैलेंस शीट नेगेटिव बैलेंस शीट है। आपका किधर तो गड़बड़ हो रही, कुछ तो आपका उधर आप मिस कर रहे हो उसमें, तो कुछ तो आपका प्रॉब्लम्स हो रहे उसमें, बिजनेस में आपका करंट लायबिलिटी बढ़ गए तो इस केस पे आपको बैंक भी लोन नहीं दे सकते। तो करंट रेशियोज, जैसे आपका बिजनेस का जब आप बैलेंस शीट देखेंगे, जैसे बैलेंस शीट जो है ये आपका इट्स लाइक ए ह्यूमन बॉडी, मींस जो जैसे अपना बॉडी के लिए रेगुलर अपने कुछ चेकअप होता है, हम लोग रेगुलर चेकअप करके लेते हैं आफ्टर सर्टेन एज, वैसे आपका बिजनेस का बैलेंस शीट का भी एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ योर बिजनेस ग्रोथ आपका बैलेंस शीट एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। और एज ए बिजनेसमैन आपको समझ के लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गाड़ी आप चला रहे तो आपका ट्रैफिक रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ ड्राइवर के ऊपर छोड़ के भी नहीं चलेगा, बिकॉज कंपनी इज रनिंग बाय यू। आप एम्प्लॉय के ऊपर, अकाउंटेंट के ऊपर भी छोड़ के नहीं चलेगा। आपको एज ए बिजनेस ओनर बैलेंस शीट के बारे में समझ के लेना बहुत जरूरी है। करंट लायबिलिटी और करंट इसका कितना रेशियोज होना चाहिए, करंट रेशियोज आपका कितना होना चाहिए। सपोज आपका करंट रेशियोज
1.4 से ज्यादा है तो आप बिजनेस लो रिस्क में बिजनेस कर रहे हैं। मींस आपका करंट लायबिलिटी 1 रुपए रहा तो आपका करंट असेट 1.40 रुपीज से ज्यादा है तो यू आर डूइंग गुड बिजनेस, मींस देयर इज नो एनी रिस्क। मीडियम रिस्क कैसे होता है? 1.2 टू 1.40 इसमें है तो आपका बिजनेस मीडियम रिस्क में। हाई रिस्क कब रहेगा? आपका 1.2 से कम है, मींस जैसे आपका करंट असेट 1.2 है, आपका लायबिलिटी 1 रुपीज है, इससे कम है तो आपका बिजनेस रिस्क में होता है। तो इन शॉर्ट आपको क्या होना चाहिए इसमें? आपका जो करंट असेट है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, करंट लायबिलिटी जो है वो आपका कम होना चाहिए। ये एक सिंपल रेशियो है, ऐसे बहुत सारे रेशियोज है, हम लोग आगे बुक्स में देखेंगे। ये एक ही रेशियोज नहीं है, आपका जो बिजनेस आपको बैलेंस शीट देखते टाइम में आपको बहुत सारे रेशियोज है, जैसे डेट इक्विटी रेशियोज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियोज, ये बहुत सारे लोग मिस करता है। जैसे अभी विजय मल्ल्या जब लोन लिया था, उनका डेट इक्विटी रेशियो जो होता था वो 9:1 था, मीन्स उसका बैंक लोन 9 और खुद का पैसे सिर्फ 1 रुपए था उसमें। तो ऐसे आपका रेशियोज एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कभी कभी बैंक आपको लोन दे रहा है तो भी आपको नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए आपका रेशियोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक योर बॉडी, आवर बैलेंस शीट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बिजनेस हेल्दी। करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में आपको क्या देखना है? करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस आपको बैलेंसिंग रखने के लिए आपको एज ए ओनर, एज ए अकाउंटेंट आपको क्या देखना है? वेदर ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस आर पेड इन टाइम। आपका जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है ये सब करंट लायबिलिटी में, प्रोविजंस एंड करंट लायबिलिटी में आप दिखाएंगे, ये सब आप इन टाइम पे पे होना चाहिए। सपोज आपने जीएसटी 1 महीने का आपने नहीं भरा तो आपका प्रोविजंस में 1 महीने का दिखेगा। आपने सपोज 4 महीना जीएसटी नहीं भरा तो 4 महीने का करंट लायबिलिटी इन प्रोविजंस में दिखेगा। इसके लिए ये बढ़ जाता है, उसके लिए आपको जो टैक्सेस है वो इन टाइम में होना चाहिए। प्रोविजंस का जो आपने लास्ट ईयर में कुछ 31 मार्च का जो एक्सपेंसेस है आपने उसको बुक किया, वो करंट ईयर में वो पेड होने के बाद वो नील होना चाहिए। करंट ईयर का मंथली प्रोविजंस आप करके लेना चाहिए। जैसे आपका 31 मार्च का जो एक्सपेंसेस होता है, जैसे रेंट है, सैलरी है, सब जो भी फिक्स एक्सपेंसेस है एज ऑन 31 मार्च आपको उसका भी जो एक्सपेंसेस है आपको बुक करके लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्रेडिटर्स लोगों का जब हम बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे तो क्रेडिटर्स 2 साल से वो मूवमेंट नहीं होता है, मींस उधर ना ट्रांजैक्शन ना पेमेंट, बट आप लोग ऐसे ही बैलेंस शीट में उसको कैरी करते रहते हैं। बट आपको जब आप पेमेंट उनको नहीं करना है, आपको वो चेक करना है वेदर उसका पेमेंट हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आपको उसका रिवर्स करके लेना पड़ेगा, मींस क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा 30%। क्यों? आपने जब परचेज किया था उस टाइम पे आपने बिल बुक किया बट आपने पेमेंट नहीं किया हुआ, उसके लिए आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे वैट और एक्साइज में सिर्फ इनकम टैक्स का एक ही प्रोविजन था, अभी जैसे जीएसटी आ गया, सपोज आपने क्रेडिटर्स को विद इन 180 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका जीएसटी भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबको देखना है एज ए बिजनेसमैन, ये सेशन होने के बाद एज ए अकाउंटेंट आपका क्रेडिटर्स कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, एज ऑन 31 मार्च 21 को कितना क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है, हुआ तो क्यों है वो देखना है, नहीं तो आपको राइट ऑफ करना है, उसका जीएसटी भी आपको रिवर्स करना है, नहीं तो आगे आपको विद इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना पड़ेगा। बहुत सारे हम लोग जब लेजर स्क्रूटनी करते टाइम में क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस दिखता है। क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस क्या होता है? जैसे आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया बट उनका बिल नहीं आया हुआ है, बट बहुत सारे बिल आया नहीं हो, पेमेंट तो हुआ रहते बट बिल नहीं आया। अभी आपने एक ऑप्शन मिला है, आप 2A से भी आप चेक कर सकते हैं। अभी जीएसटी में एक सबसे बेस्ट ऑप्शन आया हुआ है, आपका जो दूसरा बुक है, टैली में तो एक बुक आप मेंटेन करेंगे, आपका सेल्स परचेज का दूसरा बुक आपको जीएसटी पोर्टल में मिलेगा। ये सबसे बेस्ट जीएसटी का एक्ट का एक फायदा ऐसे है, आपको सब ऑनलाइन मिलेगा। उसके लिए आपको उधर भी देखना है कोई बिल्स आपका मिस हुआ क्या, उनको एडवांस पेमेंट किया हुआ क्या, वो भी आपको देखना है। सपोज आपने क्रेडिट नहीं लिया तो उसको एंट्री करके क्रेडिट भी लेना है। जैसे अब कैश पेमेंट क्रेडिटर्स को किया हुआ रहते ओनर्स, आपको पता नहीं होता है तो क्रेडिटर का बैलेंस ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होता है। वैसे भी देख लीजिए कि कभी क्रेडिटर्स को कैश पेमेंट हुआ क्या, वो भी आपको देखना है। ये भी देखना है सपोज आपका क्रेडिटर्स को कैश पेमेंट कर रहे तो एक दिन में 10,000 से ज्यादा आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं, और साल भर में एक पार्टी को 2 लाख से ज्यादा आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते। जैसे आपका क्रेडिटर्स करेक्ट है क्या नहीं देखने के लिए आप कंपलसरी 31 मार्च 21 का आपका क्रेडिटर्स का लेजर कंफर्मेशन ले लीजिए,
आप दोनों कंपैरिजन कर लीजिए, ओनली नॉट ओनली क्रेडिटर्स, सब जो भी डेटर्स है क्रेडिटर्स है, आप बैलेंस कंफर्मेशन लेके उनको क्रॉस चेक करने से आपका अकाउंट्स परफेक्ट हो जाएगा। कभी कभी डबल बिल्स का डबल एंट्री होता है, अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर वो अवॉइड होता है, तो कभी कभी आपने बिल नंबर रॉन्ग से नहीं लिखा तो डबल एंट्री होने का भी चांसेस होता है। डबल एंट्री होने के बाद डबल पेमेंट भी हो सकता है, उसके लिए आपको ये ध्यान देना है किधर आपका डबल एंट्री और डबल पेमेंट हुआ क्या, वो आपको देखना है। आज हम लोग इतना सेशन हम ये करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर है, नहीं तो कोटे सर आया कि हम लोग देख लेंगे 2 मिनट में, आए तो विल टेक द कोटे सर सेशन फॉर 15 minutes. He is not joined. If you have any queries, you can put in question answer this one. Otherwise you raise hand, I will unmute you. You can ask the queries if you have any query related to this session. आपका जो भी क्वेरी रहेगा यू कैन पोस्ट इन अवर ग्रुप आल्सो, विल कीप ओपन अप टू 8 PM. If you have any queries related to today's session, just a minute, 2 participants raise the hands, just a minute. Pramod, you can unmute and you ask the query, then I will unmute the Praveen. Yes, please ask the question. Ratio. Hello. मला वाटलं ऑनलाईन. I think he wrongly raised the hand. Praveen. Hello. Yes, Praveen. Are you able to hear me? Yeah, yes, sir, please. So this my question is regarding the ratios which you have mentioned. Yes, sir. Like 1.2 greater than 1.4, 1.2 to 1.4, and it is less than 1.2. Correct. Regarding that, Yeah. Actually, what is that ratio is actually? Sir, It is yeah, tell me, sir. Yeah, that ratio's formula is current assets divided by current liability, sir. Okay. Current assets includes your sundry debtors plus closing stock and plus other current assets. Current liability includes sundry creditors and other provisions. Okay. This is the formula. Means always your current assets should be higher than 1.4. Okay, sir. Okay. You got it, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. And another chart. Ratio. Again, Pramod also not understand the ratio. Pramod will there are many ratios in accounting. रेशियो के लिए हम लोग आगे एक चैप्टर सेपरेट एक चैप्टर ही है रेशियो के ऊपर, हम लोग जैसे जैसे उसका कवर करने के लिए हम लोग लिया हुआ है। आगे पूरा डिटेल्स रेशियो एनालिसिस के लिए हम लोग पूरा फुल एक सेशन हम ले लेंगे। आपको कुछ डाउट्स है कौन सा पर्टिकुलर रेशियो, जैसे अभी सर करंट रेशियो के बारे में पूछा है, कौन सा भी रेशियो आपको डाउट रहा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन रहे तो वी हैव अनदर 2 minutes. Any queries? Otherwise we'll close the session. Thank you all for your participation and you giving your valuable time. Thank you, Anjali madam. Thank you all for joining, and share more and more to your friends, get the knowledge. This is very important knowledge sharing session, and this book is also very practical book. You cannot get this information any Google and anywhere. This book is many seniors told it is like a Gita. This book is help to all businessmen. So share more and more.